Good morning, all of you. Welcome to Devasya Online Education. Today, we are going to start with fourth chapter of history, National Movements in India. Introduction. During their stay in India, Britishers became familiar with the political conditions of India. The British East India Company took advantage of the political disputes or internal weakness of India, and from 1757 AD, after creeping into Bengal to the uprising of 1857, it established its supremacy over India in its 100 years of rule. In order to maintain this supremacy, English gradually developed a strong administrative structure in the country. Through this administrative structure, common laws, common administration, and a legal system according to the British system came into existence. Yet the English residing in India established such laws and administration that England would get more benefit. At the cost of India, they made England prosperous and exploited India the most. So, इस इंट्रोडक्शन में हमें ये समझ में आता है कि जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे उन्होंने इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन को समझ लिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप करने के बाद देवर पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स और आपस में जो राजा महाराजा थे उनकी वीकनेस स्टार्ट हो गई थी फ्रॉम फ्रॉम 1757 टू 1857 और उसके बाद वो लोगों ने बंगाल से अपना रूल स्टार्ट किया एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे कैप्चर्ड इंडिया एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लॉज और काफ़ी सारा लीगल सिस्टम स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडियन पर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया एंड डूइंग दिस इंग्लिश रिसाइडिंग इन इंडिया ऐसे लॉज उन्होंने अपने डाल दिए जिस तरीके से कि इंग्लैंड ने मैक्सिमम बेनिफिट इंजॉय किया और उसमें इंडिया ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया एंड दे मेड इंग्लैंड प्रॉस्परस एंड एक्सप्लॉइटेड द मोस्ट एंड दे रूल्ड इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ 100 years. Next topic is Great National Uprising of 1857. Some of the factors that caused the uprising of 1857 were political dissatisfaction, economic exploitation, social and religious factor, military factors, and immediate reasons like induction of the Enfield rifle in the army. Mangal Pandey was the first martyr of the uprising. Several revolutionaries like Nana Sahib, Tatya Tope, Raja Kuwar Singh, Rani Lakshmi Bai, Bahadur Shah Zafar took part in it. Uprising of 1857 produced many effects among which are the end of the company rule in India and rule of the British Crown, changes in administrative, military, social, religious policies. The reasons responsible for the failure of 1857 uprising are the beginning of uprising before the time planned. Lack of central leadership, insufficient and unsophisticated weapons, importance of self-centered interest, that nationalism amongst revolutionaries, lack of suitable and organized leadership, etc. You have already studied this in detail in the previous class. तो नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857 में हमें पता चलता है कि काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो रिवॉल्ट था 1857 का वो फेल हो गया, जिसमें से था पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन, मतलब द रूल्स एंड रेगुलेशंस द किंग्स एंड द रूलर्स वेर फॉलोइंग वो प्रॉपर नहीं थे. इकोनॉमिकली जो अपने इंडियन रूलर्स थे उनको ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिकली यानी कि पैसों के थ्रू पूरा तरीके से बर्बाद कर दिया था. काफ़ी सारे रिलीजियस फैक्टर्स थे. मिलिट्री स्ट्रॉन्ग नहीं थी. उसका रीज़न था कि एनफील्ड राइफ़ल, मतलब जो राइफ़ल वो लोग यूज़ करते थे उसके ऊपर पिक का स्केन था और हमारे आर्मी में काफ़ी सारे सोल्जर्स ऐसे थे जो कि मुस्लिम थे एंड दे यूज़ टू सपोज टू वर्शिप द पिग. जैसे हम लोग गाय की पूजा करते उसी तरीके से वो लोग पिग की पूजा करते. तो मंगल पांडे वॉज अगेंस्ट इट. अलॉन्ग विथ मंगल पांडे दे वर मैनी फाइटर्स लाइक नाना साहेब, रानी लक्ष्मी बाई, बहादुर शाह जफ़र, जिन्होंने ये रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया. उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स लगाए कि कंपनी रूल इंडिया से ख़त्म हो जाए, बट ब्रिटिश का जो पावर था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, जिसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा चेंज आ गया, मिलिट्री चेंज हो गई, सोशल यानी कि सोसाइटी में रहने वाले लोग उनकी पॉलिसीज़ चेंज हो गई. और इसी के चलते रीजंस जो थे 1857 फेलियर के वो थे कि जो टाइम प्लान किया था उससे पहले ये रिवॉल्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया. उसके बाद कोई लीडरशिप प्रॉपर नहीं थी, मतलब कोई प्रॉपर लीडर नहीं था, उनके पास वेपन्स नहीं थे. सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब सब कोई अपने इंटरेस्ट के लिए सोच रहा था, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा था. एंड देयर वर डिस्प्यूट अमंग द रूलर्स इटसेल्फ. और उसके बाद नेशनलिज्म की कोई फीलिंग नहीं थी, लीडरशिप कुछ क्वालिटीज़ नहीं थी. तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बॉयकॉट एंड इंडिजीनियस मूवमेंट्स.
Boycott and indigenous goods. Boycott and indigenous movement along with Bang Bang movement was one of the important events of the Indian national movement. Because of divide and rule policy as a result of the Britishers, Machiavellian policies, boycott and indigenous movement got an impetus. तो बॉयकॉट एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पर हम लोगों ने ब्रिटिशर्स यानी कि इंग्लैंड से आने वाले जो फॉरेन प्रोडक्ट्स थे उसे टोटली यूज़ करना बंद कर दिया था. उसके साथ बैंग बैंग मूवमेंट था. ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के सबसे बड़े इवेंट्स थे. और उसके बाद ये इवेंट्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट बन गए, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को डिवाइड कर कर अपने तरीके से रूल करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये दोनों मूवमेंट्स का इम्पोर्टेंस बढ़ गया. Bengal was a big province at the time of British rule, which included the present day of Bengal, बिहार एंड उड़ीसा. तो जब हम आज बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कंबाइन करते तो उतना बड़ा बंगाल तब था जिस वक्त ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे. कंपेयर टू अदर स्टेट्स, बंगाल वॉज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ नेशनल अवेकनिंग. तो अगर पूरे कंट्री में हम देखने के लिए जाए तो बंगाल एक ऐसा स्टेट था जहाँ से हम लोगों को बता सकते थे और लोगों को इन्फॉर्म कर सकते थे व्हाट इज़ गोइंग इन द ओवरऑल कंट्री. द इम्पेटस एंड थॉट फॉर द नेशनल मूवमेंट केम फ्रॉम बंगाल. तो जो कि एक इम्पोर्टेंस था और नेशनल मूवमेंट के लिए जो थॉट था वो बंगाल से स्टार्ट हुआ. In 1857 revolt, Hindus and Muslims had collectively fought the English. That's why through the English strategy of divide and rule, they encouraged communalism and caused division among people. तो जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ उस वक्त हिंदूज़ और मुस्लिम्स ने साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया. और उसी की वजह सबसे बड़ा रीज़न था कि इंग्लिश की जो स्ट्रैटेजी थी डिवाइड एंड रूल की वो उनकी एनकरेजमेंट हो गई और उसी के चलते लोगों में डिवीज़न और कम्युनिटी का गैप हो गया और इसी की वजह से हम लोग डिवाइड एंड रूल में फंस चुके थे. Vizier Curzon divided the vast Bengal into East Bengal and West Bengal in the name of bringing about administrative efficiency. तो Viceroy Curzon was one of the officer of the Britisher जिसने बंगाल को दो पार्ट्स में कर दिया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल. और रीज़न दिया था कि अगर हम इतने बड़े स्टेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हम लोग हमारा काम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू डिवीजन ऑफ बंगाल. तो मतलब जब ये डिवीज़न की अनाउंसमेंट हुई थी उस वक्त लोग इस चीज़ से खुश नहीं थे एंड दे अपोज दैट decision. When Bengal was divided on 16th October 1905, the whole Bengal observed the day as National Mourning Day. मतलब उस दिन को वो लोग National Mourning Day as celebrate करते. Same day an announcement about boycotting all foreign goods and encouragement to use indigenous goods was made. मतलब उसी दिन announcement हो गया था कि हम कोई भी विदेशी प्रोडक्ट, कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे और जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो होगा हमारी ओन कंट्री का, यानी कि इंडिजीनियस प्रोडक्ट, इंग्लिश प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे और जो फॉरेन प्रोडक्ट्स है उसे हम लोग बंद कर देंगे. Not merely Bengalis but the other Indians also began to believe that division had been done to curtail the vociferous feeling of nationalism that was catching up in India. तो डिवाइड करने का रूल ये बंगाली समझ चुके थे और इंडियन समझ चुके थे कि डिवाइड इसलिए करा जा रहा है ताकि अगर हम लोग स्ट्रांग हो गए और अगर हम एक हो गए तो हम लोग ब्रिटिशर्स को निकालने में कामयाब हो जाएंगे. That day Hindus and Muslims tied rakis to each other in the entire Bengal to express their unity. तो जब ब्रिटिशर्स लगे हुए थे डिवाइड एंड रूल में उस वक्त इंडियंस लगे थे यूनिटी दिखाने में. दिस मूवमेंट हैड 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स. वन इज़ एडॉप्शन ऑफ इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, यानी कि स्वदेशी प्रोडक्ट. हम लोग हमारी ओन कंट्री के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, फॉरेन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देंगे. और नेशनल एजुकेशन, यानी कि अभी के चलते ये जो भी मूवमेंट्स होंगे उसके लिए हम लोगों को बताएंगे. India benefited a lot due to this Swadeshi movement, or English industry was badly affected due to boycott. The cloth coming from Manchester stopped. Sugar, shoes, cigarettes, tobaccos imported from England also reduced, and the sale of cloth made in India increased. तो जो भी उनके प्रोडक्ट्स बाहर से आ रहे थे उन सब की सेल कम हो गई और इंडियन प्रोडक्ट्स की सेल वापस से बढ़ गई. फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग इंडिजीनियस गुड्स वे स्टार्टेड. तो ऐसी फैक्ट्रीज को चालू कर दिया गया जो फैक्ट्रीज इंडियन प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करेगी. द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट वॉज फेल्ट इन अदर प्रोविंसेज ऑफ इंडिया लाइक पंजाब, यूपी, एमपी, मुंबई, मद्रास एक्सेट्रा बिसाइड्स बंगाल. तो बंगाल में तो ये सारी चीज़ें हुई बट इसका इफेक्ट बॉम्बे, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मद्रास में भी देखा गया. The echo of the Swadeshi movement was felt in Gujarat too. Echo of the movement was felt strongly in British Parliament, and within 6 years, division of Bengal was scrapped after rethinking by the Parliament. This was a memorable victory by the Indians, a victory of relentlessness, united efforts.
दिस वॉज अ नोटवर्दी विक्ट्री ऑफ द न्यू अवेकनिंग अगेंस्ट द इंग्लिश रूल। तो जो बाकी सारे स्टेट्स में फीलिंग आ रही थी नेशनलिज्म की, वही सेम फीलिंग गुजरात में भी दिखाई दी, और ये जो मूवमेंट था इसकी फीलिंग स्ट्रांगली ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंची, और विद इन 6 years जो डिवीजन ऑफ बंगाल कर दिया गया था उसे भी कैंसिल कर दिया गया, और ये एक ऐसी विक्ट्री बन गई इंडियंस की जहाँ पर ब्रिटिशर्स को सामने से आकर जो उन्होंने खुद में खुद डिवाइड किया था बंगाल को, उसे वापस यूनाइट करना पड़ा। नेक्स्ट इज मुस्लिम लीग विच वॉज हेल्ड इन द ईयर 1906. By adopting the divide and rule policy, English wanted to create a conflict between Hindus and Muslims. तो divide and rule policy जब उन्होंने स्टार्ट की तो उनका मेन पर्पस यही था कि हम हिंदूज और मुस्लिम्स को सेपरेट कर दें. The then Viceroy Lord Minto and the Indian Vizier Morley together planned to crush the Indian nationalism. When the national fight became stronger, the English began to favor the upper class Muslim. The English became successful in convincing a group of Muslims that they must form a Muslim organization to demand for separate voting rights and separate voting centers. As a result, Muslim League was formed. तो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस तरीके से फ़ायदा उठाया, और उन्होंने इंडियन जो उनका वाइज़र था, जो दीवान था उस वक्त, जो राजा था वज़ीर मॉडली, उनकी भी हेल्प ली और उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को दबाने की कोशिश की. और जब भी नेशनल फाइट चल रहा था और बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट था टूवर्ड्स द ब्रिटिश, तब ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारे जो मुस्लिम्स थे, जो अपर कास्ट को यानी कि जो रिच मुस्लिम्स थे, उन्हें इस तरीके से बहकाया कि तुम लोग अगर फाइट करो कि हमारे को भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, हमारा भी एक सेपरेट लीग होना चाहिए, हमारे लिए भी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए. तो इस तरीके से उन्होंने एक मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की. रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम आगा खान, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्ला खान, विसरॉय मिंटो एंड हिज पर्सनल मिनिस्टर डुनलॉप स्मिथ हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो ये काफ़ी सारे बंदे थे, जिसमें से एक उनका हेड था आगा खान, नवाब थे ढाका के जिनका नाम था सलीमुल्ला खान, और विसरॉय थे मिंटो. इन्होंने पर्सनली ये ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम करने में काफ़ी हेल्प की थी. In order to stop the Muslims from attending the annual conference of the Congress, annual conference representation is not the brainchild of the Muslim but that of the English policy. तो मुस्लिम जो थे वो एनुअल कॉन्फ्रेंस ना अटेंड कर सके कांग्रेस की, तो एनुअल कॉन्फ्रेंस जो था मुस्लिम लीग का वो भी उसी दिन अरेंज किया गया जिस दिन कांग्रेस का मीटिंग था, उसी दिन. द डिमांड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मुस्लिम. तो कांग्रेस यानी कि इंडियन समझ चुके थे कि ये जो बंटवारा है राइट्स का, ये दिमाग मुस्लिम्स का नहीं है. इट इज़ द इंग्लिश पॉलिसी विच इज़ ट्राइंग टू डिवाइड द इंडियंस एंड द मुस्लिम्स. Minto started the policy of taking Muslims as associate. That's why many writers considered Minto as the father of Muslim communalism. तो मिंटो जो था, he is considered as father of Muslim communalism. मतलब उसने मुस्लिम्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया. A historian also goes to the extent of saying that real creator of Pakistan was not Muhammad Ali Jinnah और रईत मुताला but Minto. तो वो कहते हैं कि जो रियल पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन थी वो मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं की थी, इट वॉज मिंटो. सिंस देन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम इंक्रीज एंड रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ इंडिया. तो ये जो वॉर था, ये जो चीज़ स्टार्ट हुई थी एक अलग लीडरशिप को लेते हुए या अलग इलेक्शंस पावर को लेते हुए या एडमिनिस्ट्रेशन को लेते हुए, तो ये हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड करने के लिए थी, और वो वॉर इतना बढ़ गया कि इंडिया के 2 पार्ट्स हो गए. Birth and development of extreme revolutionary movement. The revolutionary activity in India was started by Vasudev Balwant Phadke. Revolutionaries like Damodar Chapekar and Balkrishna Chapekar brothers, Veer Savarkar, Barindranath Ghosh, Khudiran Bose, Praful Chaki, Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Shivram Rajguru, Sukhdev, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह एक्सेट्रा कैरिड ऑन द टॉर्च ऑफ नेशनलिज्म. तो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, अपनी कंट्री से प्यार करने की जो फीलिंग थी, ये लोगों ने लोगों तक पहुंचाने में हेल्प की. यूथ ट्रेंड इन मेकिंग एंड यूजिंग वेपन्स वेर अ कॉन्स्टेंट थ्रेट फॉर इंग्लिश गवर्नमेंट. तो जो यंगस्टर्स थे उन्होंने कंटिन्यूसली ट्रेनिंग दी और काफ़ी सारे वेपन्स बनाते गए, और इसी के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये चीज़ों से ऑब्जेक्शन आने लगा. फियर्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स, मतलब काफ़ी टफ मूवमेंट्स चल रहे थे इन इंडिया एंड स्प्रेड इन द अदर कंट्रीज एज वेल. तो ये जो भी मूवमेंट चल रहे थे ये इंडिया में तो स्प्रेड हुए, पर बाकी कंट्रीज में भी स्प्रेड हो गए. सर्कमस्टेंसेज इन द बैकग्राउंड विद द कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, partition of 2 groups, that is Jahal, that is Redigal and Merwal, at the Congress conference in Surat.
एंड द टेरिफिक ऑपोजिशन टू प्रैक्टिस ऑफ कांग्रेस ऑफ मेकिंग ओनली रिजोल्यूशन एंड रिक्वेस्ट। तो ये जो सर्कमस्टेंसेस थे बैकग्राउंड में, इसी की वजह से जो कैंसिलेशन हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल का वो हुआ और दो ग्रुप्स बन गए थे, एक थे जहल यानी कि रेडिकल्स और एक थे मॉडरेट्स। ये कब हुआ था? जब देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस इन सूरत, और इसी के चलते एक बहुत टफ ऑपोजिशन था कि जो ये प्रैक्टिस है कांग्रेस की सल्यूशन भी निकालते और रिक्वेस्ट भी करते, इसी के चलते दो ग्रुप्स को बना दिया गया था। लाल बाल पाल ट्रियो अडॉप्टेड द रेडिकल एटीट्यूड विच ब्रॉट न्यू लाइफ इन द यंग इंडियन एक्टिविटीज़। तो जो लाल बाल पाल जो थे, इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया रेडिकल मेथड, मतलब ये लोग जाहल कम्युनिटी में चले गए एंड इन्होंने न्यू लाइफ यानी कि यंगस्टर्स को अप्रोच किया और यंगस्टर्स को काफ़ी हद तक मोटिवेट किया कि यू शुड हैव अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। द लेथार्जिक पॉलिसीज, लेथार्जिक मीन्स अ वेरी टफ पॉलिसीज़ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट अ सॉलिड न्यू टर्न। तो जो उनकी पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हमारे नेशनलिज्म यानी कि हमारे फ्रीडम के टाइम पर जो पॉलिसीज़ हमने बनाई थी उसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाने वाले जो पर्सन थे वो थे लाल बाल एंड पाल। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक declared it firmly, freedom is my birthright and I will achieve it anyhow. This became the maxim for the revolutionary freedom fighters. तो जो लोकमान्य तिलक थे उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी कि फ्रीडम मेरा बर्थ राइट है, मतलब मैं पैदा हुआ तब से मुझे फ्रीडम चाहिए और ये मैं किसी भी तरीके से हासिल करूँगा। और ये एक स्लोगन बन गया जिसकी वजह से जितने भी यंगस्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गए। एट दैट टाइम अ ग्रुप ऑफ इंडियन यूथ अंडरटुक एक्टिविटीज़ टू सीक फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल। दिस एक्सट्रीम रिवॉल्यूशनरीज वे मोर देन हैप्पी टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर मदरलैंड। दे कुड गिव अप देयर लाइव्स और टेक लाइव्स इन ऑर्डर टू अटेन फ्रीडम। तो उस टाइम पर काफ़ी सारे यंगस्टर्स थे, उनका एक ग्रुप था, तो उन्होंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसी ढूंढी जिसकी वजह से वो फॉरेन रूल को ख़त्म कर सके और फ्रीडम ला सके। और इस चीज़ के लिए वो लोगों ने दे वर वेरी हैप्पी कि अगर हमारी जान भी चली जाएगी ना, अगर हमें फ्रीडम मिलता होगा तो हमें वो भी चलेगा, और अगर हमें किसी की जान भी लेनी पड़ी सामने से तो हम लोग वो भी करने के लिए तैयार है अगर हमें फ्रीडम मिलता होगा तो। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज स्प्रेड इन महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रोविंस, Uttar Pradesh and Central India. Among these activities were some like Mitra Male Society, Abhinav Bharat Samaj and Anushilan Samiti, Anjuman-e-Mohilin Watan, Indian Patriots Association, etc. and thus gave impetus to revolutionary activities. तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होने लगे, काफ़ी सारे समाज, काफ़ी सारे सोसाइटीज़, काफ़ी सारे एसोसिएशंस, सब लोग एक ही चीज़ को फैला रहे थे, दैट वाज दी फियर्स नेशनलिज्म, यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी नेशनलिज्म को अचीव करने की। इन द फर्स्ट स्टेज न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स लाइक युगांतार, नवशक्ति एंड वंदे मातरम, केसरी, मराठा गिव कॉन्स्टेंट स्ट्रेंथ टू द एक्टिविटीज़। तो न्यूज़पेपर्स के थ्रू जगह जगह स्टेट लोगों को अपने नेशनलिज्म के बारे में जो भी न्यूज़ थी वो पहुंचने लगी। अबाउट 34 revolutionaries were prosecuted in the Alipur massacre. Several revolutionaries were arrested in Howrah massacre and Dhaka massacre. Attempt to kill Lord Hardinge by throwing a bomb, dropping bomb on Viceroy Minto on November 13, 1909 outside Raipur Darwaza in Ahmedabad can be given as examples of this. तो 34 रिवॉल्यूशनरीज ऐसे थे जिन्हें प्रोसिक्यूट किया गया था जब काफ़ी सारे मूवमेंट्स चल रहे थे उस वक्त, और एक बार अटेम्प्ट किया गया था कि जो लॉर्ड हार्डिंग्स है इनके ऊपर बॉम्ब फेंका जाए, और उन्होंने बॉम्ब फेंका था नवंबर 13 को 1909 में ये रायपुर दरवाज़ा के यहाँ पर। और ये एक एग्जाम्पल दिखा सकता है कि इंडियंस अपनी फ्रीडम को अचीव करने में किसी भी हद तक पहुँचने के लिए रेडी थे। इन द सेकेंड स्टेज इवेंट्स लाइक ककोरी लूट केस, लाहौर मैसेकर एंड ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब ऑन सेंट्रल पार्लियामेंट टुक प्लेस। तो अब इन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें दूसरी स्टार्ट कर दी, एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द अदर रिवॉल्यूशनरीज एंगेज्ड इन ऑल दिस एक्टिविटीज़। तो काफ़ी सारी मूवमेंट्स ऐसे हुए जो हमें ये बताता है हिस्ट्री में कि किस तरीके से इंडियंस ने अपने फ्रीडम को अचीव किया। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फियर्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात। फियर्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात। Sri Aurobindo Ghosh was the pioneer of armed revolution in Gujarat, but he remained behind the curtain. His brother Barindra Kumar Ghosh always remained in the forefront. तो जो औरबिंदो घोष थे, ही वॉज द हेड ऑफ द आर्मी विच वॉज देयर इन गुजरात, बट वो हमेशा बिहाइंड द कर्टन रहते थे। उनके जो भाई थे जिनका नाम था बरिंद्र कुमार, वो हमेशा आगे थे। ही अराइव्ड इन गुजरात एंड मूव टूवर्ड सदर्न पार्ट। तो गुजरात में आए और साउथ में मूव होने लगे। ही मेट श्री छोटू भाई एंड श्री अनु भाई
अम्बूभाई पुरानी वेरी एबल कंपेनियंस, तो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, वो उनसे मिले. सकारिया स्वामी met him on the banks of Narmada. This Swami was associated with Queen of Jhansi at the time of revolt of 1857. Barindra Kumar involved some of the middle class youth from Baroda, Charotar region, that is Kheda, Ahmedabad, Mehsana in the revolution. In relation to this activities, the buggy of Viceroy Minto was bombed outside Raipur Darwaja in Ahmedabad. तो जब वो गुजरात में आए उनके भाई, तो साउथ में मूव हुए, वहाँ पर वो मिले छोटू भाई से और अम्बू भाई से, वो अच्छे कस से दोस्त थे. फिर उसके बाद उनकी मुलाकात हुई सकारिया स्वामी से, जो कि नर्मदा रिवर के यहाँ पर मिले. और ये जो स्वामी थे सकारिया स्वामी, वो क्वीन ऑफ झांसी यानी कि रानी लक्ष्मी भाई के साथ मिले हुए थे जिस वक्त 1857 का रिवोल्ट हुआ था. और उस वक्त बरिंद्र कुमार ने काफ़ी सारे यंगस्टर्स जो थे उन्हें इन्वॉल्व किया था, बड़ौदा से, खेड़ा से, मेहसाना से, अहमदाबाद से. तो इसी के चलते इन्होंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की थी. जब इन्होंने मिंटो के ऊपर बॉम्ब किया था रायपुर दरवाजा में, तो इन्होंने इन सारी पब्लिक की हेल्प लेकर ये चीज़ को किया था. Sri Aurobindo Ghosh described the scheme for revolutionary in his book named Bhavani Mandir. It was also translated into Gujarati and published in the journal Dakshina. Besides this booklet with the titles like Deshi Vanaspati Dawao, Nahwana Sabu Banwani Reet, Kasrat, Gulabna Ki So, Kairono Sangrah, etc. were published in order to spread the thought of revolution. तो इन्होंने जो अरबिंदो घोष थे उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स बनाई थी, जिसका एक बुक का नाम था भवानी मंदिर. और इसी के चलते काफ़ी सारी बुक्स थी जिसे गुजराती में ट्रांसलेट किया गया था. बुकलेट्स के साथ अलग अलग नाम थे जिनका नाम था जैसे देसी दवाई, फिर नहवाना साबु मतलब जो नहाने का साबुन होता है उससे कैसे बनाया जाता है, और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें थी जिससे हम लोग रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, उसमें वो था, ताकि ब्रिटिशर को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आए और हमारा जो मेन एम है नेशनलिज्म को स्प्रेड करना वो इंडियंस तक पहुंच जाए. दिस बुकलेट कंटेन मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बॉम्ब्स. Gangnath Vidyalaya was established near Chandod, Karnali, where secret revolutionary activities were carried out. तो ये जो बुक्स थी ये अलग अलग मेथड बताती थी कि बॉम्ब को किस तरीके से बनाया जाता है. और ये गंगनाथ विद्यालय एक ऐसी जगह थी जहाँ पर रिवॉल्यूशनरी काम यानी कि जो बॉम्ब बनाने के काम होते हैं या वेपन्स बनाने के काम होते हैं वो किए जाते थे. Many Gujarati youth joined this revolutionary activity against whom stern action was taken by the government. तो काफ़ी सारे गुजराती यंगस्टर्स थे, उन्होंने ये चीज़ों में पार्टिसिपेट किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट जब उन्हें ये चीज़ पता चली तो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए गए. बट द फाइट डिड नॉट स्टॉप एंड फाइनली गवर्नमेंट रियलाइज दैट सप्रेशन वुड नॉट हेल्प टू रूल ओवर इंडिया. बट फाइट रुकी नहीं, तो फाइनली गवर्नमेंट ने समझ लिया यानी कि ब्रिटिशर्स ने समझ लिया कि अब इंडियंस को दबाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब शायद ये लोग दबने वाले नहीं हैं. इट इज़ अ टाइम टू लीव इंडिया एंड गो टू अवर ओन कंट्री एंड लेट गेट इंडिया गॉट फ्रीडम.